Then in the cathode, you will be getting Na. In the anode, you will be getting Cl. So what is the amount of Na positive? What is the amount of sodium metal that is deposited in the cathode, and what is the amount of Cl2 gas that is being liberated in the anode? उसकी बारे में बात होती है ना कि कितना निकलेगा, like what is the amount? So in this we have seen that mass, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी बहाएंगे उतना ज्यादा आपका सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, क्लोरीन गैस निकलेगा. ऑल्सो यू कैन से जितना ज्यादा आप देर तक इलेक्ट्रिसिटी बहाएंगे, the longer you are using that electricity, उतना ही ज्यादा mass deposit होगा, right? So I can say that mass is directly proportional to current into time. Current into time. Now, if we remove the proportionality constant, we get a. If we remove the proportionality sign, you will get a proportionality constant that is known as Z. इसको डिनोट करते Z से ZIT हो जाएगा फिर फॉर्मूला के पास. So it will be ZIT. Now, if you remember from the 10th standard, I into T is nothing but it is equal to the charge, right? So Z into Q will be the exact one formula. Z को क्या बोलते हैं? Z को बोलते हैं electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. ठीक है, ये तो लिखने के लिए. अगर आपके पास आ जाए ना what is the first law, what is the Faraday's first law of electrolysis, या फिर what is the first law of electrolysis, इस तरह सवाल आ जाए, then you are going to write this. ठीक है, यहाँ तक कंप्लीटिंग आप लिख दीजिए तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको. या फिर इफ दे आस्क यू that what is the mathematical expression for the first law of electrolysis, then you are going to write these things only, ना जो मैथ से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला. ठीक है, तो ये तो लिखने की बात होगी, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, कैलकुलेशन में क्या काम करेगा वो हम आपको बताएंगे. हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज द मास डिपॉजिटेड एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब एक डेफिनेशन आपका व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आता है, तो उसके बारे में लिख लीजिए. इफ there is 1 coulomb of charge passing through the, if 1 coulomb of charge is passing through the substance or electrolyte, तो जो भी मास डिपॉजिट होगा that is equal to the electrochemical equivalence, है ना. तो यहाँ पे लिखिएगा the mass deposited or liberated, deposited in the case of solid and liberated in the cases of gas, when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte. Can you please write this down? Sir, can you scroll up? Yeah, sure. Please raise your hand once you're done writing. Waiting for Aisha, Mariam Parker, and Rabah. Rabah, just waiting for you now.
प्रभा डन? Sir, प्रभा last line. Yes, sir, the last last line. line. The mass deposit. Okay, okay. Done, sir. See, this is it regarding the first law. Second law आप ना किताब से लिख लीजिएगा, सिर्फ वो नोट बुक में आपके रहना चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ फॉर न्यूमेरिकल्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट लॉ जनरली आता है, सेकंड लॉ बेसिकली हमने आज तक कभी देखा नहीं है। सो यू विल लीव लाइक हाफ पेज या फिर 4 5 6 लाइंस यू विल लीव एंड देन यू विल राइट न्यूमेरिकल्स, बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल्स ज्यादा ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल से डील करने के लिए बहुत आसान से आपके पास फॉर्मूला है। सी, a very old formula regarding charge that we know is Q is equal to I into T. Correct है guys? Yes or no? अरे बोलो भाई। Yes, sir. लेकिन इसको ऐसे हम लोग याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना। हम लोग कैसे याद रखेंगे, हम लोग ऐसे याद रखेंगे CAS। कैसे याद रखेंगे? CAS। आई होप अब आप लोगों को दिख रहा होगा। व्हाट इज C? C is Coulomb। व्हाट इज A? A is बोलो, किसको याद? A? Ampere. Ampere, very good, Ampere। And what is S? S से क्या होता है? टाइम का S है ना, सेकेंड्स, वेरी गुड, सेकेंड्स, ठीक है ना। इस तरह से याद रखेंगे। ऑल ऑफ यू गाइस गॉट इट? यस और नो? प्लीज टेल मी। हाँ जी बताएं, क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए ऑल ऑफ यू गाइस। अब हम कुछ बात बता रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू गाइस एंड यू विल आंसर मी। Na+ को अगर सोडियम बनना है, क्या बनना है? सोडियम बनना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज नीडेड? टेल मी गाइस। अरे बोलो भाई, लिखना नहीं है रबा, इधर देखिए। हाँ वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हमारे पास 2 मोल होता है Na+ का, तब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते? 2। अच्छा, अगर इफ यू हैव कैल्शियम 2+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कैल्शियम बनने के लिए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? कैल्शियम 2+ को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और Cl लिख दिया हमने, माय बट आप लोग पागल होंगे, लग रहा है मास्टर पागल हो गया, Cl लिख दिया। ठीक है, देखिए कैल्शियम 2+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कैल्शियम बनने के लिए? 2 ना। 1 कौन बोल रहे थे भाई? 2 चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये किस किस का नहीं है कैमरा ऑन? आयशा का कैमरा ऑन नहीं, मरियम खातून का ऑन है, मरियम खातून का भी ऑन नहीं है। मरियम खातून कैमरा जी, व्हाट हैपेंड टू योर कैमरा? ध्यान दीजिए। डिड एनीवन अंडरस्टैंड? ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। ये तो कहाँ पे हैं आप? फुल आपका ऐसे लग रहा है बिल्कुल किसी बीच में आप। समुंदर है और हाँ वीडियो आ रहा है, वो वहां पे कोकोनट के पेड़ है, आप नहीं है लेकिन। आपका तो आवाज नहीं समझ में आता, माइक ठीक कराओ यार। किसी को समझ में आ रहा है मरीम खातून क्या बोल रही है? आमना आपको समझ में आ रहा है? माइक ठीक कराओ यार मरियम खातून, प्लीज, हम बोल रहे हैं माइक ठीक कराओ। मतलब ऐसा अक्टूबर आ गया बिल्कुल, है ना। हम मतलब इतना अभी भी क्या बोला वो कैसे समझ में आएगा? वॉट एवर यू रीजन यू आर गिविंग, हमको वो कैसे समझ में आएगा? कुछ बात ही समझ में नहीं आती आपकी। इतना मतलब मेरा कान पता है इतना ज्यादा ट्रेन हो चुका है ना, आपका पता है, आप जो बोलती है ना, इट इज लाइक हाउ डॉक्टर्स राइट प्रिस्क्रिप्शन। तो वो मतलब इतना ज्यादा जोर लगा के हमको सुनना पड़ता है उसमें कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। आई एम कम रबा ये अलग है, रबा अपना अलग उनका चल रहा है। आई एम कमिंग, हाँ ठीक है, आइए आप 5 मिनट। अरे 5 कहाँ जाना है आपको? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अभी बाद में आइएगा। वेट अ सेकंड, बस हम बता देते हैं। कैल्शियम 2+ विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, देन आई कैन से दैट इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज है। यू जस्ट नो दैट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
is having how much charge, कितना चार्ज होता है 96500 कूलम्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं 1 फैराड। 1 मोल चार्ज पे, अच्छा ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इफ आई एम टेकिंग 2 मोल्स ऑफ एनी पॉजिटिव, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इफ आई एम टेकिंग 2 मोल्स ऑफ एनी पॉजिटिव, देन आई विल नॉट नीड 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ना काम चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आई है? सुनो बोलो भाई, ठीक है। दैट मीन्स आई कैन हैव एक और फॉर्मूला है हमारे पास क्यू के लिए। दिस इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं पता है? आप देख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो मोल्स पे डिपेंड करेगा, ये 2 किसकी वजह से आ रहा है? मोल्स की वजह से आ रहा है ना। या फिर अगर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, डेल्टा OH इज इक्वल टू 1 प्लस से 0। अदरवाइज यू कैन सी हियर, here also the 2 electrons, और ये 2 electrons आ रहा है किसकी वजह से? It is only because of delta OH, change in oxidation state. तो Q is equal to change in oxidation state. But लेकिन ये Q कौन सा है? This Q is Faraday. तो Faraday क्या हो जाएगा? moles into delta OS। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया। C is equal to S तो था आपके पास। Then you have what? You have F is equal to moles into delta OS। फैराडे आ गया। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम फैराडे टू कूलम, तो हम कूलम के लिए क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू डेल्टा OS डिवाइडेड बाय 96500। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. इतना ऑल ऑफ दीस फॉर्मुलाज आर ओके ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना फॉर्मूले में? किसी में आमना सिद्रा के अलावा बाकी लोग बताएं। आमना सिद्रा को हमने एक बार करा दिया था ट्रायल क्लास में। जिस कौन है? आयशा है, रबा है और मरियम खातून। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला? यस और नो? फर्स्ट तो आपको पता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, एक ये फैराडे से पूछे तो फैराडे वाला, और ये वाला फॉर्मूला काम आएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए रबा यू कैन गो, 5 मिनट में आइए आप। ऐसे छुट्टी मांग रहे 5 मिनट का होने बाद। All of you write this down. Let me know once you're done. जो सबने लिख लिया? You guys can lower your hand. चलिए एक सवाल लिखिए। Calculate the charge in Faraday required to produce 2 moles of I2, 2 moles of I2 from Ki। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यू हैव टू गो फ्रॉम Ki से I2 जाना है आपको, राइट? अच्छा, यहाँ पे आपको क्या बोला है? कितने मोल्स I2 चाहिए? यू नीड 2 मोल्स ऑफ I2, करेक्ट है? देखो देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आना चाहिए एटलीस्ट व्हाट इज द चेंज हैपनिंग, ठीक है। सो यू नीड 2 मोल्स ऑफ I2। सो हियर वी हैव हाउ मेनी आयोडीन? टेल मी गाइस, हाउ मेनी आयोडीन हियर? हाउ मेनी आयोडीन? बोलो भाई, जोर से बोले। हाउ मेनी? 4। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही है ना? बोलो, गॉट इट? यस और नो? मरियम खातून, आप, आयशा? Yes. ओके। सो आल्सो वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपके पास देखिए, आपको हमेशा रिएक्टेंट वाला लेना है, ठीक है ना? नंबर ऑफ मोल्स जो आप लेंगे यहाँ वाला लेंगे, ठीक है। इफ यू गो टू द रिएक्टेंट पार्ट, रिएक्टेंट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे -1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट और I2 में 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये आपको आना चाहिए। इफ इसमें किसी को प्रॉब्लम, थोड़ा हाथ उठाएंगे ना।
Raise your hand if you have a problem in calculation of oxidation state for iodine in Ki and I2. दिखना चाहिए बिल्कुल आपको, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। अच्छा मरियम खातून को प्रॉब्लम है, माइक ठीक कराओ मरियम खातून, फिर हम बताएंगे आपको। हम कैसे समझाए बताइए, आपको कैसे समझाएगा? कुछ हमको समझ ही नहीं आया। What you are saying? How would I understand? Tell me. Sir, now is my voice clear. Now is my voice इतना आया, लेकिन this is going to be constant ना। Are you using a mic? ईयरफोन यूज कर रहे हैं आप? ईयरफोन? Yes, sir. You are using an earphone. ठीक है। Do you know पोटेशियम का ग्रुप नंबर क्या है? सॉरी, डू यू नो? देखिए नहीं आएगी ना, फिर नहीं आवाज आई। आपको हमेशा जोर से बोलना पड़ेगा, चीख के बोलना पड़ेगा बिल्कुल। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ पोटेशियम मरियम? ग्रुप नंबर ऑफ पोटेशियम। आपकी आवाज ही नहीं आ रही अब तो। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा, इसमें हम क्या बोले? ठीक है ना, ये चीज आप लोग को आना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट रिडॉक्स रिएक्शन, एक चैप्टर 11 स्टैंडर्ड का, प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन से, नथिंग एल्स। सर एक्चुअली यू कैन गो टू सम अदर रूम आल्सो ना मरियम। आई अंडरस्टैंड दैट, बट आप थोड़ा दूसरे रूम में जा सकते हैं। खैर, मरियम खातून रिडॉक्स रिएक्शन आपको देखने में, अच्छा कंप्यूटर में है आप? ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। मरियम खातून आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अभी जवाब नहीं दे सकती तो आई सॉरी, मतलब हम वो बता ही नहीं सकते। आई विल जस्ट से लाइक दिस, ग्रुप नंबर पोटेशियम का होता है, ग्रुप नंबर इट इज इक्वल टू 1 फॉर पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इट इज ऑलवेज +1। सो सिंस पोटेशियम वैलेंसीज इज सॉरी, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, ये आपके पास x, आयोडीन के लिए x ले लेंगे, x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो आयोडीन का -1 आ जाएगा। हम इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते अभी ज्यादा। इफ यू कैनॉट आंसर मी राइट नाउ, तो हमको पता ही नहीं प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इफ यू डोंट नो द ग्रुप नंबर, तो आपको फिर पीरियोडिक टेबल जो कि आपका चैप्टर 3 है 11th स्टैंडर्ड का, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल चेन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, दैट कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Also, the valency thing, it is not a part of redox reaction. Valency thing is a part of periodic classification. तो periodic table आपको याद करना पड़ेगा। नो, उसके में मतलब कुछ if but वगैरह नहीं है। You remember, you have to memorize the periodic table, at least the S block and the P block, group 1, group 2, 13 से लेके 18 तक। हाँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आप भूल जाइए periodic table, तभी आपको याद रहेगा कि पोटेशियम का +1 होता है, वो प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है चीज, चलिए। Now, if this is -1, तो change in oxidation state कितना हो रहा है बता दीजिए guys. What is delta OS? What is delta OS? -1 से 0, डेल्टा OS कितना हो? चैट में बताएं भाई, चैट में बताएं, आवाज ही नहीं आ रही ठीक से किसी। चैट में बताएं, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? किसी का आंसर नहीं आ रहा। आमना सिद्रा, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी बोलो भाई। यस आयशा करेक्ट, आमना करेक्ट, सिद्रा आई हैव नॉट गॉट आंसर फ्रॉम यू। मरियम खातून -1 से 0 क्या? अरे नंबर लाइन में कितना जंप मारना पड़ रहा है, बस वही पूछ रहे हैं हम। इफ यू आर एन -1, कितना जंप मारेंगे तो 0 पे पहुंच जाएंगे? हाउ मेनी जंप्स? अरे यार मरियम खातून, आपका आंसर आना चाहिए ना, 1 होगा यहाँ पे ना। -1 से 0 जाना है आपको, -1 है यहाँ पे 0 है, एक जंप मारिए पहुंच गए, दैट इज द चेंज। ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मोल्स, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे? 4 है ना यहाँ पे। रिएक्टेंट साइड में देखना है आपने, तो रिएक्टेंट में आपके पास कितना है? 4 मोल्स, सो मोल्स इज इक्वल टू 4। सो फैराडे विल बी इक्वल टू हाउ मच? मोल्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो 1 into 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 फैराडे। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये सोनो प्लीज टेल मी। Yes, sir. जल्दी छापिए।
Raise your hand once you're done. All of you are done, I guess. Yeah, very good. चलिए, देयर आर सम क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी, उनको हम लोग बस कर लेते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड कम से कम आपको कर लेना चाहिए। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस, तो आप फैराडे में कीजिएगा, फिर उसके बाद उसको कूलम्स में भी कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ओके जस्ट अ सेकंड यार, ये कूलम्स में होगा तो 96500 मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, तो 2 फैराडे जो होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा ठीक कर ले तो गाइस, C इंटू 96500, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिए जरा, मेरे दिमाग में अभी बस खटका, ठीक है। इसको प्लीज सही कर लीजिए। C इज इक्वल टू, इफ यू आर गोइंग, दिस C इज कूलम नॉट चार्ज, है ना। C क्या है, कूलम में अगर आपको लाना है तो मोल्स इंटू डेल्टा एस इंटू 96500 कर लिया चेंज आप लोगों ने, आई होप। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन, फॉलोइंग रिडक्शन, तो बस आपको क्या करना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए और नंबर ऑफ मोल्स देखिए, ठीक है। जल्दी बिल्कुल ऐसे खटाखट चैट में आंसर आना चाहिए, 1 और 2 का तो चैट में आंसर आना चाहिए, फैराडे में कम से कम। इन फैराडे तो पेन भी उठाने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अरे लिखो मत भाई, चैट में आंसर करो पहले। आमना, नो राइटिंग, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, जल्दी फटाफट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है। फैराडे में यू कैन आंसर विदाउट इवन टेकिंग योर पेन अप, बिना पेन उठाए होना चाहिए। विदाउट इवन पिकिंग योर पेन अप यू कैन राइट द आंसर्स। आंसर ही नहीं आ रहा, लेकिन किसी का नहीं समझ में आया, किसी को मतलब, किसी को समझ में नहीं आया मतलब। FS3, अरे 3F लिख दो। FS3 क्या होता है, 3F लिख दीजिए आप, FS3 नहीं होगा, 3F, 3 फैराडे। हाँ मरियम खातून, बहुत बढ़िया, चलिए समझ को समझ। आयशा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया मरियम खातून, हाँ ठीक है। आमना, सिद्रा को नहीं आया लगता, सिद्रा लिखने है ना। सिद्रा क्या कर रही है, लिख रही हैं आप, चैट में लिखिए आप आंसर सीधा। हाँ 3.5, 3.5 का है होगा रे भाई सिद्रा, वाई इट विल बी 3.5। थर्ड वन, ना 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 ना। हाँ आयशा का सही है, सेकंड वाला, हाँ ठीक है। आयशा इज आंसरिंग इन कूलम, दैट इज आल्सो फाइन, ठीक है। अरे भाई MnO4, ये तो सिद्रा कराया था हमने। चलिए तीसरे में कुछ लोगों को दिक्कत होगी, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड का आप लोग को आ गया। दिस इज 3 फैराडे which will be equal to 3 into 96500 coulombs, and this will be 2 Faraday which will be equal to 2 into 96500 coulombs. In the third case, MnO4 negative 2, Mn2 पॉजिटिव। अच्छा मरियम खातून, आपसे ना एक सवाल है, ठीक है ना मरियम खातून, आपको थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से हम आप सवाल कर रहे हैं कि थोड़ा सा शायद आपको याद आ जाए। ऐसे आप ना अपने आप से पूछो, ऐसे अपने दिमाग से पूछो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मरियम खातून, चैट में आंसर करे तो क्या बोल रहा है आपका दिमाग। इट वुड से समथिंग फॉर श्योर, कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेगा। मतलब क्या नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होना चाहिए। गलत आ रहा है आपके दिमाग में आंसर। अच्छा, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट द ऑक्टेट, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज ऑक्सीजन नीड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, कुछ इसका आंसर आ रहा है। वैलेंसी 8,
नहीं नहीं नहीं, मतलब 8 तो चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब 8 हो जाएंगे। तो अभी ऑलरेडी कितने हैं उसके पास, कुछ आपको आइडिया है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट ऑलरेडी हैज, और फिर कितने चाहिए होंगे उसको, ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक और तरीका है इस तरह से ऑक्सीजन के केस में। ऑक्सीजन जनरली, नहीं नहीं नहीं, अभी भी गलत है, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा गलत हो जा रहा है मरियम खातून। एक लास्ट ट्राई, ठीक है मरियम खातून। ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है? हाउ मेनी बॉन्ड ऑक्सीजन मेक्स जनरली स्पीकिंग? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है न्यूट्रल कंपाउंड में? अगर सोचे ना, आपने तो पढ़ा है, आपने अल्कोहल भी पढ़ा है, आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स भी पढ़ा है, वहां पे ऑक्सीजन आया था, कितने बॉन्ड बना रहा था ऑक्सीजन? हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, -2 इसका होता है, ठीक है ना, -2 होता है। पता नहीं शायद आपको याद आया हो नहीं याद आया हो। तो इफ आई कैलकुलेट फॉर एमएन के लिए, तो एमएन के लिए -2 तो ऑक्सीजन का हो गया, इंटू 4, बिकॉज वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमएन इज एक्स। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू -2, एंड दी ओवरऑल चार्ज हियर इज -1, तो इसको -1 के बराबर करना पड़ेगा, दैट इज इट। आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शन शायद करना चाहिए था आपको 11th में, अगर आपने नहीं किया तो। सो एक्स -8 is equal to -1. X is equal to 8 minus 1, which will be equal to +7. So my Mn is in +7 state here, और Mn2 पॉजिटिव में ये +2 स्टेट में है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये बता दीजिए आप लोग। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू हाउ मच नाउ? ठीक है, -5 नहीं होगा रे भाई, आमना। आपको कितने जंप लगाने पड़ रहे हैं 5 से 2 तक जाने के लिए? हाँ, कितनी बार जंप करना पड़ेगा आपको, वो आंसर दीजिए आप। माइनस माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना। तो चेंज हमेशा प्लस में रखें। 5 का चेंज आ रहा है आपका, ठीक है। सो ये 5 चेंज आ रहा है, तो नंबर ऑफ, ये फैराडे के केस में क्या जाएगा, फैराडे विल बी इक्वल टू, मोल्स तो 1 है आपके पास, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5, तो हो जाएगा आपके पास 5 फैराडे। इन टर्म्स ऑफ कूलम इट विल बी 5 into 9 6 500 coulombs. Is this clear? Yes or no? Please tell me. क्या सबको समझ में आया? अरे बोलो भाई, नहीं आया क्या किसी को समझ में? आंसर कोई हाँ ना कुछ नहीं बोलता है यार, बहुत ही ज्यादा उदासी का माहौल है यहाँ। टेल मी गाइस, इज दिस क्लियर, यस और नो? आमना, आयशा, Yes, मरियम sir. खातून, Yes, sir. प्रभा। प्रभा अभी अभी आई है लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपने क्या करना है, हम बता रहे हैं आपको। यू हैव टू डू द सेम थिंग, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यू आर गोइंग फ्रॉम CaCl2 से आप कैल्शियम के तक जा रहे हैं। सर वेट, सर इज वेटिंग। बाकी लोग लिख लें ये सवाल को, 20 ग्राम वाला। यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे बस है ना, यहाँ पे आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, ग्राम से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैल्शियम का। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम का यहाँ से क्या निकालेंगे, यू विल टेक दी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। कितने मोल्स आपको एल्यूमिनियम के चाहिए, मोल्स मिल जाएगा। देन यू विल गो फ्रॉम CaCl2 टू Ca, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, और फिर आंसर आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे खातून लिखे लिखिए। ओके फाइन, गाइस प्लीज डू दीज 2 क्वेश्चंस। अच्छा, हम एल्यूमिनियम का आपको मोलर मास बता दे रहे हैं। द मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, आई थिंक। मोलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27। कैल्शियम का आई होप आप लोग को पता है, कैल्शियम का कितना होता है? अच्छा, किसी का आंसर नहीं आया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40, ठीक है।
गाइस अगर आपको नहीं आ रहा तो देखिए, फर्स्ट वाले का आंसर आ जाना चाहिए था। मोल्स ऑफ कैल्शियम, यू विल कैलकुलेट मोल्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, आयशा का आंसर आया पहले वाले का। आई थिंक दैट इज करेक्ट आयशा। ठीक है, एंड क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से इट इज गोइंग टू कैल्शियम। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम हियर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे तो जीरो है आपके पास, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम हियर, वो भी आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल एबल टू डू द आंसर। नहीं, मरियम खातून नहीं सही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स यू आर गेटिंग, मरियम खातून टेल मी ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल रहा है आपको? मरियम खातून नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है आपका? वेरी गुड, 1/2। एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम यहाँ पे, व्हाट इज, हाँ आप सही है, ठीक है, वेरी गुड मरियम खातून, मरियम खातून सही है। सेकंड का करें, सेकंड में भी सेम चीज करना है आपको। एंड ऑल्सो कीप द वैल्यूज इन फ्रैक्शन अंटिल एंड अनलेस यू आर इन द लास्ट स्टेप। अगर आप आखिरी स्टेप में नहीं है ना, तब तक आप फ्रैक्शन ही रखा कीजिए। प्रभा, कैन you calculate the oxidation state of calcium in calcium chloride? Yes, Rabha. Sir, I don't know how to. So can you just do this question for me? From next question I will do. नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं नहीं, एक सेकंड, क्या आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है? Yes, sir. Oxidation कितना reduction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अरे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम? Sir, uh, sir, it will be 40. Sorry, 2. अरे भाई कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, बात तो सुनिए आप मेरी। Sir, 2. +2 ना? Very. Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्या कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में? डेल्टा ओएस 0. कितना है? अरे जीरो कैसे, चेंज कितना आ रहा है भाई? 2 R 2. Minus 2. हाँ तो फिर, और मोल्स कितने हैं? Moles 40. 40 मोल्स हैं, ये लिखा हुआ हमने हाफ और 40 मोल्स बोलिएगा Sorry, आप, sorry. गिवन मास Half. बाई मोलर मास का Half. 1/2 ना। अच्छा बताइए, हाउ मच इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो डेल्टा ओएस और मोल्स वाला फॉर्मूला ना, F इज इक्वल टू मोल्स इनटू डेल्टा, डेल्टा ओएस है कि नहीं? Yes, sir. Moles of delta. देखिए फार्मूला लिखा है ना आपने, अरे फार्मूला लिखा है कि नहीं लिखा आपने, फार्मूला बताइए। No, sir. है नहीं लिखा भाई आपने, Not हमने, there. यू आर देयर, ये तीनों में नहीं थे आप? No, sir. From this numerical part, I was not there. Like I listened to the explanation. न्यूमेरिकल पार्ट लिखा नहीं है, आप बोलिए ना, फिर आपने लिखा नहीं तो Yes, sir. ठीक है। मोल्स इनटू डेल्टा ओएस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज हाफ, डेल्टा ओएस कितना है 2, कितना हो गया 1 बाई, सॉरी 1 टू कैंसिल 1 फैराडे। ठीक है, अगला कीजिए। कहाँ है आप, कनेक्शन बहुत ज्यादा खराब हो गया लग रहा है, ऐसे आवाज आ रही है बिल्कुल when you're But done sir, your then mic where off। we will use this 20 gram and all this? ये किया ना यहाँ पे हमने, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए चाहिए ना हमको, गिवन मास वाज 20, मोलर मास वाज 40, 1/2 मोल्स निकाला ना हमने यहाँ पे। Oh, okay, sir. ठीक आंसर आया। मरियम खातून का, नहीं मरियम खातून, थोड़ा सा गलत आ गया आपका। 4 फैराडे आमना, 4 फैराडे कौन सा आ रहा है आपको, 4 फैराडे कैसे आएगा? हाँ आमना, सर वो गलत है। गलत है। अगला वाला, सर वो भी गलत है। वो भी गलत। ठीक से कीजिए, फिर क्या कर रहे हैं आप, एक एक स्टेप करिए ना, ठीक है, स्किप मत कीजिए स्टेप्स को। सिद्रा आपका तो आंसर ही नहीं आ रहा है, सिद्रा।
देखिए अगर देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं दिक्कत कहाँ पे होगी आपको, इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, दिक्कत वहां पे होगी. सो इफ आई कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल द मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, moles of aluminium will be equal to the given mass is 40 divided by the molar mass is 27. तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. आई विल नॉट चेंज टू डेसिमल वगैरह में हम नहीं चेंज करने वाले अभी. ठीक है. इफ आई लुक एट दी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Al2O3 से आपको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए. Now here we are having two aluminiums, तो एल्यूमिनियम के लिए लेंगे 2x plus there are three oxygen atoms minus 2 because oxidation state of oxygen is minus 2 will be equal to 0. Now 2x is equal to what, 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा minus 6 is equal to 0. तो आपके पास 2x is equal to आ जाएगा 6 and x will be equal to 6 by 2, that is equal to plus 3. So you are going from plus 3 to aluminium 0. So change in oxidation state जो हमारे पास आया है delta OS, this is equal to 3. चेंज देखना आपको पॉजिटिव लेना हमेशा चेंज. ठीक है. अच्छा आयशा 4.4 आ रहा है आपका भी. ठीक है, मे भी सही है मरियम खातून आपका, आई डोंट नो, वी विल सी. सो फैराडे विल बी इक्वल टू मोल्स कितना है आपके पास, 40/27 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ओएस कितना हो गया 3. सो नाउ आई कैन मल्टीप्लाई हियर ऐसे इस तरह से 9 हो जाएगा ये, है ना. नाउ 40/9, सो 9 4 जा 36. हाँ सही है, वेरी गुड, सही है मरियम खातून, सही है. Sir, can you show the question? I think everyone is done. Amna and Sidra, you're done, no? ठीक है. Right, next question. How much electricity is required in Coulomb for the oxidation of? ठीक है, तो आपको पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, you are going from H2O to O2. Now in H2O, the oxidation state of oxygen atom it is equal to -2 और O2 में है 0. ठीक है. So delta OS is equal to 2 मोल्स. तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ H2O दिया हुआ है, तो 1 मोल ये आपको ये फिक्स है, ये 1 मोल है, राइट. 1 मोल ऑफ H2O यानी कि मोल्स कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ O2. हाँ ठीक है, 1 मोल H2O ना. तो आपके पास बताइए फैराडे इज इक्वल टू कितना, मोल्स इनटू डेल्टा ओएस. ठीक है. यहाँ पे आपको लग रहा है सर हाफ लिखेंगे क्या, हमने हाँ हाफ लिखेंगे, कोई बात नहीं. आपको रिएक्टेंट देखना रहता है ना, 1 मोल्स आपके पास है तो 1 मोल का यहाँ पे 1 मोल लिखेंगे. सो मोल्स इज इक्वल टू 2, सॉरी 1 into 2, 2 फैराडे हो जाएगा इसके लिए. इन दिस विल बी इक्वल टू 2 into 9650, 2 into 9650 कूलम्स में आ जाएगा. ठीक है. उसी तरह से इसमें देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताएंगे FeO से Fe2O3, ऑक्सीजन का -2 है. ठीक है. Fe2O3, चलिए इसका बताइए कितना आ रहा है, डेल्टा ओएस पहले बताइए, उतना ही आपके पास फैराडे में आ जाएगा डेल्टा ओएस. टेल मी द डेल्टा ओएस हियर.
ऑक्सीजन का -2 होता है, तो आयरन का निकालिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। सर 3। अरे भाई माइक चैट में देना रहता है जवाब, ये सब नाम लेके पूछे तो आंसर क्या कीजिए इस तरह से। मॉलिफाई गाइस, टेल योर आंसर इन चैट कितना आ रहा है। एक आंसर आया बस अभी तक, बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा। डेल्टा वेस क्या हो गया भाई, नाम लेंगे तभी आएगा आंसर सबका। आमना, आयशा, मरियम खातून एंड सिद्रा। ठीक है, सिद्रा आपने आंसर क्यों नहीं लिखते जब तक हम आपका नाम नहीं लेते हैं? अगर आपको इसी तरह क्लास करनी है, अगर आपको इंटरेक्ट नहीं करना है तो फिर आप रिकॉर्डिंग देखें प्लीज। सेंड योर आंसर वॉट एवर यू आर गेटिंग। अगर नहीं आ रहा किसी का तो प्लीज यू विल राइट आई डिड नॉट गेट इट, कुछ भी लिखो कम से कम। आई विल गिव यू 5 more seconds. 1, 2, 3, 4 and 5। चलिए देखते हैं जरा। सी है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, तो आयरन का कितना हो जाएगा? आयरन का यहाँ पे ऑब्वियसली +2 हो जाएगा, राइट? +2 एंड -2 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तो +2 होगा Fe का। लेट अस सी हियर, यहाँ पे 2x + 3 into -2 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x इज इक्वल टू 2x - 6 इज इक्वल टू 0। So 2x is equal to +6 and x is equal to +3. So +2 से +3 जा रहा है तो टिल्डा ओएस कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, रबा एंड आमना। और डेल्टा ओएस इज 1, मोल्स आपको दिया हुआ है 1। क्या करती हुई रबा? सेम इसी तरह तो Al2O3 का हमने किया था, सेम थिंग हमने किया है यहाँ पे। External में +3 इस after पे भी that what गलती you कर रहे हैं आप। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ना, चेंज डेल्टा ओएस पूछ रहे हैं हम ना, तो +2 से +3 जा रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? व्हाट इज द चेंज? Okay, 1. हम्म, ऑल ऑफ दीज आर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस से ही आपका जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। जब भी सवाल आता है ना इससे, फैराडे लॉ से, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, तो यहीं से आता है जनरली। ठीक है, राइट दिस अनदर क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू डन राइटिंग दिस नो? No sir. इफ यू ऑल, चलिए इतनी जल्दी लिखो एंड यू गाइस कैन राइट द क्वेश्चंस। लोगों ने अभी तक सवाल नहीं लिखा, यू विल राइट द क्वेश्चन। सिद्रा आज तो कुछ नहीं जवाब देती हैं आजकल, बिल्कुल जब आप आए थे इसमें ट्रायल क्लास में तो खूब जवाब दिया आपने, लेकिन उसके बाद से तो फिर ऐसा साइलेंट हुए हैं आप। आमना को हम बोलेंगे, आमना अपने पेरेंट्स को कंप्लेन की है ना कि सर डांट बोल रहे थे कि सिद्रा बिल्कुल बात बात नहीं करती है, कुछ जवाब नहीं देती है। ओके आमना? ओके सर। बहुत गुड, सिद्रा को पड़ेगी डांट। इज एवरीवन डन? लिखे सबने? नहीं लिखा? रबा हो गया आपका? Yes.
ठीक है, सी हियर गाइस, ये सवाल देखें। Here you are having a solution of nickel NO3, NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrode using current of 5 ampere. तो जैसे आपके पास एक नंबर आ जाए तो आप उस नंबर को लिख दें एम्पियर, इट इज इक्वल टू गिवन एज हाउ मच, कितना एम्पियर दिया हुआ, 5 एम्पियर, ठीक है, फॉर 20 मिनट्स, दैट मींस दे हैव गिवन अस टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स, सो ऑब्वियसली मिनट से हमको क्या ही लेना देना, आई हैव टू कन्वर्ट दिस टू सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इनटू मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, राइट? This will be equal to 6 to the 12 and 2 zeros, 1200 seconds. Please don't write, listen here. What mass of nickel is deposited? That means a reaction is taking place in which, ये आपको identify करना पड़ेगा, NiNO3 को electrolyze कर रहे हैं, so we are getting nickel. So what is the reaction happening? The reaction which is happening is NiNO3 whole twice giving you nickel, Now in this case you can see that the change in oxidation status, NO3, if you remember क्लास, कौन सी क्लास थी, क्लास 9th में पॉलीएटॉमिक आयंस था, उसमें बताया जाता है कि NO3 पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, तो वहां से रटना रहता है आपको 9th क्लास से, ताकि आप 12th क्लास के यहाँ पे इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो निकल में सी दिस इज निकल का x ले लो आप, प्लस 2 into -1 will be equal to 0, तो x आ जाएगा आपके पास +2, so nickel is +2 here and nickel is 0 here, so the change in oxidation state is equal to how much, delta OS की अगर हम बात करें it is equal to 2। अच्छा, अब आपसे उन्होंने पूछा है what mass of nickel is deposited, सर आप बोलिए सर इसका तो फॉर्मूला हमको पता ही नहीं, हम बोलेंगे जी बिल्कुल बात सही बोल रहा आपको कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं पता, बट यू नो दिस एटलीस्ट, क्या पता है आपको ये पता है कि अगर हम चार्ज को कैलकुलेट करें तो C is equal to A into S होता है, and also charge is equal to moles into delta OS into 96500 भी होता है, ये दोनों चीजें आपको पता है। Now then I can equate ना AS को इससे इक्वेट कर सकते हैं, so we'll get what we'll get, A into S is equal to जो भी मोल्स आया है आपका into the delta OS into 96500। अच्छा, अगर हम मोल्स को थोड़ा सा खोल के लिखें तो आई कैन राइट मोल्स एज द मास, जो भी गिवन मास जो डिपॉजिट होता है ना, जो गिवन मास जनरली जिसको हम बोलते हैं, गिवन मास हमेशा गिवन नहीं होता, आई होप यू नो दिस, गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर मास, है ना, दिस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ओएस इनटू 96500। अब यहां से आपके पास एक खूबसूरत सा बिल्कुल फॉर्मूला आ जाएगा मास डिपॉजिटेड का, सो मास डिपॉजिटेड जो कि आपका क्या है, गिवन मास है ना, वही उसी मास डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू, क्या लिख देंगे, A इंटू S इंटू मोलर मास, है ना, डिवाइड बाई डेल्टा ओएस, और 96500 नीचे आ जाएगा डेल्टा ओएस इंटू 96500, दिस विल बी बिलो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, हाँ, मोलर मास डिवाइड बाई डेल्टा ओएस इंटू A इंटू S डिवाइड बाई 96500। तो अगर आप इसकी बात करें ना, देखेंगे अगर ध्यान से आप, सो दिस होल थिंग यहाँ पे, ये जो आपके पास है, दिस इज द एम्पियर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेकंड है, ठीक है, देन हियर यू हैव 96500। तो अगर आपको याद हो जो मास होता था दैट वाज Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है, तो I इंटू टी, तो अगर आप उसमें 96500 से डिवाइड कर दें, दैट इज जस्ट अ कांस्टेंट टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम्स, ठीक है, कूलम्स में आ जाएगा आपके पास Z इंटू आई टी अगर हम लोग कर देंगे तो, ठीक है ना। मोलर मास अपॉन डेल्टा ओएस की अगर हम बात करें तो यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जो कि Z से डिनोट किया जाता है, वो अलग बात है, एक चीज बस एक चीज दिखाना था आपको, नथिंग एल्स, ठीक है, Z इंटू आई इंटू टी जो हम लोगों ने किया था। Here I have almost each and everything. What is the molar mass of nickel? ये आप लोग को अभी पता नहीं है, but it is equal to 58.7, ठीक है, तो ये दिया रहेगा आपके एग्जाम में, अगर एग्जाम में आया सवाल तो ये आपको दिया रहेगा 58.7 डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वी हैव गॉट दिस एज 2 मल्टीप्लाइड बाय द करंट, ए क्या है करंट आपका, which is 5 एम्पीयर, मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड, इट इज इक्वल टू 1200 if I remember it correctly, डिवाइड बाय 96500, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, दिस विल बी द मास डिपॉजिटेड। क्या ये पर्टिकुलर सवाल आप सभी को समझ में आया?
Yes or no, please tell me. Yes, हाँ sir. जी बताएं. नो. नो बोल रहे हैं, yes बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं. Yes. ये सर नो आया ना सबको, ठीक है. ये फॉर्मूला आपको अब ध्यान रखना है, ठीक है. फॉर मास डिपॉजिटेड, कभी भी मास डिपॉजिटेड पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, A इंटू एस मोलर मास अपॉन डी. यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको यही दोनों याद रखना है. दिस इज द मेन फंडा, यही है आपके पास. कूलम इज इक्वल टू A इंटू एस एंड कूलम इज इक्वल टू मोल्स इंटू डेल्टा एस इंटू 96/0. इन दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा जब, तो यू कैन गेट दी मास डिपॉजिटेड ऑल्सो. बस यही दो फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर पूरा फैराडे लॉ का मतलब भार खड़ा है, ठीक है. तो चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, सॉल्व कीजिए इसको, एंड आई एम कमिंग अप विथ सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर नहीं, दिस ईयर. इस साल कुछ अगर सवाल आए हो तो उनको हम देख लेते हैं जरा. ला, 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 ला. Sir, can you show the question? आप अच्छा क्वेश्चन ऑफ 'Raise your hand once you're done writing'. वन 1.82 ग्राम्स है ना, ग्राम्स में आएगा आंसर, ठीक है. चलिए देखिए, अब हम कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से. बहुत ही आसान सवाल आएगा, ठीक है. यहाँ से देखिए, अभी हमने ये वाला सवाल किया,
अभी हमने ये वाला भी सवाल किया, ये वाला सवाल, बस ये 2 ही सवाल आए हैं मेनली लास्ट ईयर के पेपर में। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग सेट्स के पेपर हैं, आई थिंक कितने ही सवाल है ना, सीआरटी एनसीईआरटी। ठीक है, तो आई मीन एक पेपर में और स्टेट फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आया तो फर्स्ट लॉ ही जनरली स्टेट करने के लिए आता है। ठीक है, एंड यू विल गेट दिस सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि अभी हमने जस्ट अभी किया, हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव, इसका आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। एंड हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu, तो कितना हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान सवाल, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल आता है। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी सीन दीस टू। अब आते हैं एक जो आपके पास सवाल है जिसमें बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब होता है, वो ये वाला सवाल है पीसीआर का। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है। देखिए गाइस, 3 electrolytic cell A, B and C containing solution of ZnSO4, AgNO3, CuSO4। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास क्या है, ZnSO4 है, देन यू हैव AgNO3 एंड देन यू हैव CuSO4। ठीक है, तो यू शुड नो दी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सभी का। तो Zn का इस केस में, ZnSO4 में Zn का AgNO3 वगैरह का क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सो ऑब्वियसली Zn यहाँ पे +2 स्टेट में है, Ag यहाँ पे +1 स्टेट में है और Cu यहाँ पे +2 स्टेट में है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, उससे आपको कोई मतलब है नहीं। स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, सो यू शुड नो दिस दैट करंट जो है आपके पास I जो है आपका, this is equal to 5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver was deposited। 1.45 gram of silver was silver, यानी AgNO3 जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या डिपॉजिट कर रहा है, Ag डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा OS कितना हो गया यहाँ पे, Ag में 0 हो जाएगा तो डेल्टा OS इट विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, तो जिंक क्या करेगा डिपॉजिट, जिंक विल बी डिपॉजिटिंग Zn, तो यहाँ पे डेल्टा OS हो जाएगा 2। यहाँ पे डेल्टा OS क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए डेल्टा OS भी हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, हाउ लॉन्ग मतलब कि दे आर आस्किंग फॉर टाइम, क्या पूछ रहे हैं वो, टाइम पूछ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है, A इंटू S इज इक्वल टू मोल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, मास डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय, बताइए क्या था, मोल्स इनटू डेल्टा OS। ठीक है, मोल्स इनटू डेल्टा OS। तो यहाँ पे अब आपके पास टाइम पूछा, ये हमारे पास था ना रिलेशनशिप, ये देखिए पहला वाला रिलेशनशिप, A is given mass by molar mass। अच्छा, 96500 छूट गया यहाँ पे, डेल्टा OS इनटू 96500 होगा, बिकॉज दिस वन इज इन कूलम 96500। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और सिंस दे आर आस्किंग अबाउट द टाइम, तो हम बस टाइम की जगह यहाँ पे सेकंड्स जो होंगे उसको लिख देंगे क्या, दिस इज मास डिपॉजिटेड, जो भी मास डिपॉजिट हुआ है डिवाइड बाय द मोलर मास, व्हाटएवर द मोलर मास है आपका, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट डेल्टा OS इनटू 96500। अब आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इट इज ओनली गिवन फॉर AgNO3 ना, AgNO3 के लिए मास कितना दिया हुआ, मास डिपॉजिटेड इज 1.45 ग्राम, तो मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 1.45 ग्राम्स। सो बस अब आपको क्या करना है, Ag का किसी को पता है, Ag का कितना होता है, अगर नहीं दिया तो फिर आप लोग फंसिएगा। ठीक है ना, इट इज 108 मोलर मास ऑफ Ag इज इक्वल टू 108। तो यहाँ पे आपके पास अब सवाल बहुत आसान हो गया, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 1.45 डिवाइड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई, आपके पास डेल्टा OS कितना है, डेल्टा OS इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 96500। सो इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द टाइम इन सेकंड्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 700-800 सेकंड आएगा। कैन यू प्लीज कैलकुलेट, ये समझ में आया कि नहीं सबको, सब ये बताइए, कितना समझ में आया ना, टाइम निकालने का फंडा समझ में आया सबको, हाँ है ना, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज टेल मी। हाँ जी, सिद्रा, आमना, आयशा, ऑल ऑफ यू गॉट दिस ना, ओके। प्लीज कैलकुलेट करें कितना आ रहा है आंसर।
मरियम खातून को 1.5. Just a second, let me see. ओ गाइस, एक और चीज आपको करना पड़ेगा, माय बैड, किसी ने याद भी नहीं दिलाया हमको। ये ए कहाँ गया, किसी ने पूछा ही नहीं। एम्पियर नीचे आ जाएगा ना, मोलर मास इनटू एम्पियर, एम्पियर नीचे आ जाएगा इनटू ए। ए की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, सो वॉट एवर यू हैव गॉट ना मरियम खातून, आपको 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, और दैट्स इट। Whatever answer you are getting, you have to divide it by 5. आंसर आ रहा है 259, 800 है कुछ शायद, जस्ट लेट मी सी। Oh, wait a second, 1.5 लिखा हमने। My bad guys, it is 1.5 एम्पीयर हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया? 1.5 है ना। अरे आप लोग कुछ बोला करो भाई, कुछ गलती हो तो हमसे। 1.5 से डिवाइड करना, बैड गाइस, माय बैड। You will have to divide this by 1.5. Thank you, Aisha. Thank you, Aisha. You will get this answer as 863.7. तो 860 के आसपास, 860-70 के आसपास चलेगा आंसर। ठीक है, दिस मच सेकंड्स। ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। Then they're asking what mass of copper and zinc are deposited. Just one thing for regarding the previous assessment that you had, na guys. आयशा, आपका 5th क्वेश्चन गलत हुआ था असेसमेंट में, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले में, राइट आयशा? ओ डिस्कस करना है आपको या फिर समझ में आ गया? सॉरी, व्हाट आयशा, व्हाट आर यू सेइंग? सवाल ये था गाइस, ठीक है, 5th सवाल 2 बच्चों का नहीं, एक बस आपका ही गलत हुआ है। We can discuss. ये देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग प्रोसेस इज पॉसिबल एट एनोड। तो जब एनोड की बात हुई, एनोड में O2 बनता है ना, राइट? डाइल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, तो डाइल्यूट में यू विल गेट O2 ओनली ना। याद आया आपको? कैथोड में बनता है H2 और एनोड में O2। डिस्कस किया था ना आखिरी में हम लोगों ने। जिस ना, ठीक है, तो सिंपल सा था सवाल। और एक सवाल और गलत हुआ है, नहीं, सिद्रा का 2 सवाल गलत हुआ है। 2nd नंबर एंड 4th नंबर। 4th नंबर क्या था सवाल? 4th नंबर इज द कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो होना चाहिए था सही ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए लिखा था ना हमने। सिद्रा बताएं, व्हाट इज कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ सिद्रा। नेगेटिव। डेल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखो ये तो बात है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल के लिए था। 2 बार ये कराया हमने, देखो डेल्टा जी। हाँ देखो, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बिल्कुल नोट्स वाला सवाल। ई जो होगा नेगेटिव होगा और डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बस उसको हमने उल्टे तरीके से पूछा था, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा ई विल बी लेस देन 0। और समझ में आई? डेल्टा ई बोलो, सॉरी, इट विल बी ओनली ई, नॉट डेल्टा ई, माय बैड। यस सिद्रा, गॉट इट?
Yes, sir. 1943 नहीं मरियम, कैलकुलेशन में फिर मिस्टेक है कुछ। हमने कैलकुलेट किया भी 863 आ रहा है। In electrolysis of aqueous NaCl, the product obtained is H2 gas. Gases are liberated faster than metals. Is the reason. देखिए assertion रीजन भी आपका सही नहीं था सिद्रा, सीयर गेस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज H2 गैस, तो ये तो सही बात है ना कि एक्वस, जब आपके पास एक्वस कंडीशन रहता है NaCl में तो H2 गैस, सो दिस इज ट्रू। बट गैसेस आर लिबरेटेड फास्टर देन मेटल्स, ये तो सही नहीं है, बिकॉज रिएक्शन जो होगी वो मतलब गैस तो जल्दी मूव करता है जब गैस बन जाएगा, राइट। बट इन द सोल्यूशन व्हाट इज हैपनिंग, एक्वस से आपका गैस बन रहा है तो गैस तो बाद में बनेगा ना। सो व्हाट एवर चेंज इज हैपनिंग, द चेंज विल बी हैपनिंग इन द सेम रेट। ऐसा नहीं कि गैस का लिबरेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ गैस इज फास्टर देन दैट ऑफ मेटल्स, ये जरूरी नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर इसको छोड़िए आप। एंड हाँ चलिए अब आते हैं आपके पास, आई होप यू हैव डन दिस। इसको 863 आएगा, आप मेरे कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, ठीक है एक बार। नाउ देन यू हैव व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड। एक तो आपके पास लंबा मेथड है कि क्या करें आप, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, यू राइट द होल फॉर्मूला। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू समथिंग एल्स इज दैट, सी हियर, जो मास आपका डिपॉजिट होता है ना, अगर आप मास डिपॉजिट देखें, कहाँ है आपका फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। मास डिपॉजिट के अगर हम बात कर रहे हैं ना, प्लीज ध्यान से देखेंगे और प्लीज यू विल आंसर मी, ओके गाइस। मास में आपके पास इफ यू आर हैविंग कॉपर जिंक एंड Ag, तो जितना करंट कॉपर के लिए चल रहा है उतना ही करंट इसके लिए जिंक और Ag वगैरह सबके लिए सेम करंट चलेगा, यस और नो प्लीज टेल मी। सेम एम्पियर विल बी देयर ना, यस टेल मी। अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोलते यार आप लोग, आमना, मरियम खातून, रबा। एंड द टाइम टेकन, टाइम जो होगा सेम टाइम के लिए उनके भी चलेगा, करेक्ट है। अगर आप एक ही साथ सीरीज में है, अगर तो सीरीज में आप लोग ने अभी पढ़ रहे होंगे ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, अगर सीरीज में है सेम करंट दौड़ेगा और सेम टाइम के लिए भी दौड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये कांस्टेंट भी सेम रहेगा तीनों के लिए, जो Ag के लिए वही कॉपर के लिए रहेगा, वही जिंक के लिए रहेगा, यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। अरे बोलो भाई। Yes, sir. यस ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो मास डिपॉजिटेड है इट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड डेल्टा OS। अगर हम ये बात करें मास डिपॉजिटेड Ag का इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास डिवाइड बाई डेल्टा OS, किसका, Ag का ही, फॉर Ag। मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक या फिर कॉपर की अगर हम बात कर ले पहले, कॉपर की, so this will be directly proportional to the mass, sorry, molar mass divided by the delta OS, इसका कॉपर का, एंड मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक भी वही सेम हो जाएगा ना, सेम तरीके से। मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक will be equal to the molar mass, not equal to, divided by proportional molar mass divided by delta OS into क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, दिस विल बी और जिंक। सबको ये समझ प्लीज मी, टेल मी गाइस, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, when mass deposited of these things are directly proportional to the molar mass and delta OS only, तो यहाँ पे हम कम से कम ये कह सकते हैं कि Ag के लिए आपको कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, Ag के लिए क्या आ रहा है वैल्यू, रेशियो है आपके पास 1.45 is proportional to mass deposited by delta OS। molar mass है इसका 108 डिवाइड बाय डेल्टा OS कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दिस इज द डेल्टा OS, ठीक है। तो डेल्टा OS अगर आपके पास इतना है 1 है, तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा OS इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 1.45 समथिंग, आई मेस्ड अप समथिंग, एक सेकंड, थोड़ा सा हमको लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा,
थोड़ा सा धैर्य रखिए हमारे साथ प्लीज। आई हैव टेक अ बिट ऑफ लॉन्ग रूट यहाँ पे। मास डिपॉजिटेड चेंज होगा, डेल्टा वाइज चेंज होगा, मोलर मास चेंज होगा, ठीक है। सो आई कैन राइट A into S divided by 96500 will be equal to the mass deposited into delta OS divided by the molar mass. ठीक है, इतना ठीक है सबको। A into S divided by 96500, डेल्टा एस को उधर भेज दिया हमने, मोलर मास को डिवाइड कर दिया, तो मास डिपॉजिटेड इनटू डेल्टा एस डिवाइड बाय मोलर मास। इज दिस क्लियर? यस और नो प्लीज टेल मी। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर इफ A इज सेम फॉर ऑल द सब्सटेंस, Ag के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए A सेम है, S सेम है, टाइम सेम है और 96500 सेम है। इफ दीज क्वांटिटी आर सेम फॉर ईच एंड एवरी सब्सटेंस, तो ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी? तीनों के लिए सेम रहेगी। करेक्ट है गाइस? बोलो। Yes, नहीं, sir. करेक्ट है ना? ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो मास इनटू डेल्टा ओएस डिवाइड बाय मोलर मास, ये वैल्यू जो Eg के लिए होगी, दिस विल बी सेम एज मास डिपॉजिटेड इनटू डेल्टा ओएस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर। ले लो पहले कॉपर के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मास डिपॉजिट ऑफ Ag तो हमको पता है, इट इज इक्वल टू 1.45 इनटू डेल्टा ओएस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू 108। दिस विल बी इक्वल टू मास डिपॉजिट ऑफ कॉपर जो कि निकालना है हमको, इनटू डेल्टा ओएस इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हाउ मच? 63.5। करेक्ट है, 63.5। तो अब आपके पास मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड क्या आ जाएगा? मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू 63.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 63.5, नहीं इंटू 2 नहीं होगा, मेरा इंटू 1.45 डिवाइड बाई 2 इंटू 108। दिस विल बी फॉर कॉपर। करेक्ट है? अच्छा, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आई कैन कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक ऑल्सो। तो जिंक के लिए क्या लिख देंगे? मास ऑफ Zn इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ Zn। कितना मोलर मास? इज 65.5 होता है शायद इसका, क्या ठीक है 65 ले लीजिए आप, 65 इंटू 1.45 इसके लिए भी रहेगा, डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 2 इंटू 108, इसके लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, सो यू विल गेट दी मास फ्रॉम हियर। इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो मास आएगा। अब ये जो सवाल है, ये आपका सवाल एटलीस्ट आएगा अगर 3 मार्क्स आएगा, ठीक है, इट इज एटलीस्ट 3 मार्क्स। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन।